Welcome my friends. In my first video, we discussed about chain rule basic concepts. In my second video, we discussed about how to implement chain rule in one step. And in my third video, we would like to see those questions which are supposed to be present in your question paper when you give any exam like JEE mains and all. I would like to discuss in what depth the differentiation can be difficult in case of your JEE mains. I would like to take some of the examples over here. When you do it, in your regular studies, it is easy. But when it comes to JEE mains, the same question is twisted and can become headache for all of us. So let us understand the very important part of differentiation, which can be challenging for us during our entrance exam like JEE mains. Let us take an example. Now, before we would do that, we should know what is the differentiation of U by V. This is called quotient rule of differentiation. The differentiation of U by V is differentiation of a numerator into denominator as it is minus numerator into differentiation of denominator upon denominator square. So this is a very important thing we should know before we start next question of JEE mains level. Now the question is, find the differentiation of y is equal to 1 minus x. It's a very easy question. Direct apply the quotient rule and you will get your answer. So let us apply quotient rule and let us find out what can be the differentiation of y with respect to x. So first step, dy by dx is equal to the differentiation of u by v, that is the differentiation of numerator into denominator as it is minus numerator as it is differentiation of denominator divided by denominator square. So very easy question. Let us do the simplest form of this term. Dy by dx is equal to, what is the differentiation of x? As we all know, it is 1 into 1 minus x, no change, minus x, no change, into differentiation of 1 minus x. So what is the differentiation of 1 minus x? So we have to distribute differentiation on 1 minus x, means differentiation of 1 minus differentiation of x, because the differentiation is distributive over positive or negative sign. We know that d by dx of u plus v is d by dx of u plus d by dx of v. Same way, if it is a minus, we can distribute. So we have the same situation over here, differentiation of 1 minus x. What is the differentiation of 1 minus x? Differentiation of 1 minus differentiation of x. The constant term and the differentiation of constant term is 0. So we write 0 minus differentiation of x, again 1. So altogether differentiation of 1 minus x is replaced by minus 1. So with x minus 1 divided by 1 minus x all square. If we simplify further, what do we get? We get 1 minus x minus minus plus. So we get 1 minus x plus x upon 1 minus x the whole square.
We can cancel this term, positive and negative. So finally we get one upon 1 minus x the whole square, and the sum is over. So the differentiation answer is 1 upon 1 minus x whole square when y is given as x upon 1 minus x. आपको लगेगा सर इतना डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ये, नहीं लग रहा है क्योंकि आपको पूछा इसलिए गया है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स फाइंड करो 11th स्टैंडर्ड में, क्योंकि आप 11th में, मगर जब यही चीज आप 12th स्टैंडर्ड के बाद आपके सामने आएगी कुछ अलग तरीके से, तब आप इसको करने के लिए जो चीज चाहिए, सोचने का जो तरीका है, हाउ टू थिंक फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, वो जरूरी है. क्वेश्चन इज नॉट फाइंड dy बाई dx, क्योंकि जो आपने आंसर जो आपने निकाला है वो आंसर जो ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी उसमें से कोई है ही नहीं, क्योंकि आपका जो ऑप्शन है उसमें कहीं पे वेरिएबल एक्स ही नहीं दिखाई दे रहा है. ऑल द ऑप्शंस आर इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल वाई. तो क्वेश्चन में ये है कि फाइंड dy by dx in the terms of y only. ये है क्वेश्चन. क्वेश्चन इज नॉट फाइंड dy by dx, find dy by dx in the terms of y alone. ये जो आपने किया है उसमें dy by dx का जो आंसर है उसमें y कहीं पे नहीं है. कौन सा वेरिएबल है जो वहां रिफ्लेक्ट हो रहा है? तो वेरिएबल रिफ्लेक्ट हो रहा है x. अगर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y इन द टर्म्स ऑफ y alone, ओनली y. तो ये है आपका जेई मेंस का क्वेश्चन. तो आपके चारों ऑप्शंस होंगे, उसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा है ही नहीं कि जिसमें x रिफ्लेक्ट करता हो. सारे ऑप्शंस जो है उसमें सिर्फ y में आंसर चाहिए और आपका आंसर x में पड़ा हुआ है. तो अब इसी क्वेश्चन को यहां तक करने के बाद अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए आपको वापस शुरू से जाना है और इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट 12th स्टैंडर्ड का निकालना है. 11th में शायद अगर आपने रेफरेंस बुक की होगी तो ये क्वेश्चन आपने किया होगा. क्वेश्चन ये है कि अगर y को हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो हाउ टू राइट x इन द टर्म्स ऑफ y. कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल चीज है कि सबसे पहले तो आप इस पूरी लाइन को एक स्ट्रेट लाइन विदाउट डिनोमिनेटर में अरेंज कर दो. कोई डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, अगर डिनोमिनेटर है तो उसकी साइड चेंज करके मल्टीप्लीकेशन में डाल दो ऑपोजिट साइड में. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स, में उसकी साइड चेंज कर देता हूँ और वो y के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. तो ये हो जाएगा y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स. पहला स्टेप. दूसरा स्टेप, क्योंकि आपको x को एक तरफ रखना है तो पूरे लेफ्ट और राइट साइड मिला के पूरे स्टेटमेंट में जहां पर भी x की टर्म है वो सबको आप एक तरफ ले जाओ और बाकी की टर्म विदाउट x जो है उसको दूसरी तरफ ले जाओ. तो यहां हो जाएगा y x plus yx. तो आई एम चेंजिंग दिस दैट साइड. अब जैसे ही आपके पास सारी x वाली टर्म्स एक तरफ आ गई, अब उसमें से आप x को कॉमन निकालो क्योंकि उसके अलावा x कहीं और पूरी टर्म में नहीं है. तो वी कैन राइट इट एज इसको हम लिख सकते हैं x into 1 plus y is equal to y. Now you write down x in the terms of y. For that you have to change this term opposite side. So we can write x is equal to y upon 1 plus y. This is the way you can express x in the terms of y. और हमें क्या करना है, हमारा जो आंसर है उसको हमें y के फॉर्म में लिखना है. तो दिस इज द रफ वर्क यू हैव डन. यू हैव एक्सप्रेस x इन द टर्म्स ऑफ y दिस वे. बस इसी चीज को आप वहां पे रख दो. तो वेरी इजी सम. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस होल स्क्वायर और x इज रिप्लेस बाय y अपॉन 1 प्लस y. बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है हम लोगों के लिए जब हम इस छोटी सी चीज को समझ नहीं पाते हैं. एंड दिस इज द क्वेश्चन वाज देयर इन 2020
जेई मेंस मॉर्निंग सेशन फेब्रुआरी। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो दिस इज होल स्क्वायर 1 अपॉन, इसकी साइड चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 + y माइनस वाई अपॉन 1 + y जो चला जाएगा ऊपर, क्योंकि डिनोमिनेटर विल गो इन द न्यूमरेटर। अब अगर मैं इसको लिखता हूं 1 + y द होल स्क्वायर, तो क्या मेरा आंसर सही होगा? क्योंकि यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो dy/dx का जो आंसर मैंने निकाला, पहले मैंने निकाला था ये वाला आंसर, जो कहीं पर भी क्वेश्चन के जो आंसर्स दिए हैं उस ऑप्शन में कहीं मैच ही नहीं हो रहा है, तो मुझे उसको वापस रिफ्लेक्ट करना है y के टर्म्स में। तो मुझे क्वेश्चन में से y की वैल्यू, x की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद में उस x की वैल्यू को यहां पे आंसर में रख के 2 स्टेप और करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा dy/dx इन द टर्म्स ऑफ y अलोन। तो ये है हमारा डिफरेंशिएशन का एक लेवल प्लस, जो जेई मेंस में रिफ्लेक्ट होता है फॉर द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12 इन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। जो लॉजिक मैंने यूज किया है वो सिर्फ डिफरेंशिएशन में नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स है जिसमें आप यूज करोगे इन क्लास 12। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट वी हैड टुडे, जिसको आपको याद रखना है, समझना है और एकदम से दिमाग में बिठा देना है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आपको बोला गया है कि यू हैव टू एक्सप्रेस द आंसर इन द टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल, इट इज नॉट डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि किस तरह से आप क्वेश्चन में जो y इज द इन द टर्म्स ऑफ x है उसको x इन द टर्म्स ऑफ y कैसे लिख सकते हो। बाकी प्रोसेस जो है वो हमारा सेम है, सिर्फ लास्ट में हमने x की वैल्यू को ये थोड़ा सा रफ वर्क करके सिंप्लीफाई करके आंसर को रख दिया है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। आई एम कमलेश जोशी। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। सत श्री अकाल।